Hello everyone, welcome to the another session of clinical toxicology. So in today's session, we are going to discuss about chapter 7, that is clinical symptoms and management of acute poisoning. With the several compounds are there. So among them, first we are going to discuss about the pesticides poisoning. So what are these pesticides? These pesticides are the compounds which are used to kill the insects and rodents, which are generally found in and around our house, which will be making our day-to-day life difficult. So in order to avoid them, or in order to kill them, or in order to run them away, we will use some compounds. Those compounds are known as pesticides, pesticide poisoning. Then if such compounds will be consumed by us, then it will lead to the poisoning condition. That poisoning is known as pesticide poisoning. So there are 5-6 different classes of compounds inside the pesticide poisoning. So in our syllabus, we are having total 4 compounds under the category of pesticide poisoning. So one by one, we are going to see them in the different sessions. So in today's session, first we are going to discuss about the organophosphate compounds, right? So what are these organophosphate compounds? These organophosphate compounds are, phosphorus containing compound. They are phosphorus containing compound. So they are having phosphorus in their chemical structure. That's why they are termed as organophosphorus compounds. They may come in the dust. वो हमको फ्यूमिगेशन करने के लिए या फिर ऐसे ही डालने के लिए भी डस्ट फॉर्म में मिलते हैं. एंड समटाइम दे विल कम इन द ग्रेन्यूल्स आल्सो, एंड समटाइम इन द लिक्विड आल्सो, and several times they will come in the concentrated liquids. Concentrated liquid means before using them we have to dilute them in the water. So those are known as concentrated liquids. They will come in all those forms. Then there are various compounds, more than dozens of compounds. We can classify them into various measures, various types. So among them we are going to see some examples that can be easy to remember for exam point of view also, and which are readily available in the Indian market. So in various parts of India, these compounds are widely available. So we can classify these organophosphate compound into 3 different classes. पहला तो आता है हाई टॉक्सिक कंपाउंड्स, फिर इंटरमीडिएटली टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड लो टॉक्सिक कंपाउंड. हमने जब पहली क्लास में यूजुअल फेटल डोज का कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पे वी हैव डिस्कस्ड की कंपाउंड विच इज हैविंग कंसंट्रेशन यूजुअल फेटल डोज इन दी 101 to 50 mg per kg और 51 to 500 mg per kg, ऐसे को हम हाई टॉक्सिक कैटेगरी में रखते हैं. एग्जाम्पल इज डाइसल्फोन, इथियोन एंड फेनफॉर्म. आई अरेंज दिस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर DEF so that it will be easy to remember for exam. यहाँ पे क्या क्या आता है? डाइसल्फोटोन, इथियोन एंड फेनथॉन. So these are highly toxic substance, means very small quantity of these compounds is producing the lethal effect. Then we are having another class की intermediate toxin, जो 501 mg per kg से लेके 5000 mg per kg यानी 5 ग्राम पर kg के हिसाब से अगर हम उनको इंजेस्ट करते हैं तो दे आर कैपेबल टू इंड्यूस द लेथल इफेक्ट. ऐसे में एग्जाम्पल है एबेट, एसिफेट एंड मालाथियन. मालाथियन बहुत कॉमनली मिलता है इंडियन मार्केट में, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा. नाउ दिस एबेट, एसिफेट एंड मालाथियन, वी कैन रिमेंबर इट एज अ निमोनिक्स. देन इन द लो टॉक्सिक कंपाउंड्स, और मतलब जो इतना टॉक्सिक नहीं है मगर इसको अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये पॉइजनिंग इफेक्ट देगा, ये है डाइजिनॉन. सो दीज आर सम कंपाउंड्स विच आर रेडिली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट और साउथ एशियन मार्केट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस पॉइजनिंग टॉक्सिसिटी विल अकर अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग. Right, here is one small illustration of mechanism of action. This is very easy. If you will concentrate here, then it will be very easy to understand. Now लेट्स एज्यूम कि हमारे बॉडी में एक जो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, इन आवर बॉडी, फ्रॉम CNS देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम. वी ऑल नो दैट, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, एक एड्रेनर्जिक पाथवे है, देयर इज एड्रेनर्जिक पाथवे एंड देयर इज अ कोलिनर्जिक पाथवे, right? Adrenergic pathway and cholinergic pathway. In our body there is a balance between this adrenergic and cholinergic pathway. There is a fine balance between adrenergic and cholinergic pathway. Now in organophosphate poisoning, what is happening na, once these compounds are produced, they will release in the particular area, there they will show their action, and after some time they will decay or they will go away.
right? So this is the normal procedure. Now in organophosphate poisoning, what it is happening means these organophosphate compounds, they are coming, they are not binding with acetylcholine, they are binding with one other compound known as acetylcholine esterase enzyme. So what this enzyme will do, once this acetylcholine is released in our body, this acetylcholine will go and it will break down this acetylcholine, so that this acetylcholine will do its work. After that it will decay, it will die away in the influence of acetylcholinesterase enzyme. Now what these organophosphate compounds are doing, they are coming, they are binding to this acetylcholinesterase enzyme. Now if they are binding with the acetylcholinesterase enzyme, this acetylcholine is now not decaying, it is not dead now. Now this acetylcholine will keep on accumulating. What this will do, this will keep on accumulating and the cholinergic activity will be there. So this cholinergic activity, especially muscarinic activity and nicotinic activities will be increased. What will happen? It will increase. Then the sign and symptom will occur like the increased cholinergic activity. The same thing is illustrated here. Now we just see here, organophosphate compounds will come, it will inhibit the acetylcholinesterase enzyme. Once this acetylcholinesterase enzyme will be inhibited, now the acetylcholine will be accumulated. Once acetylcholine will be accumulated, it will show the cholinergic symptoms. In the cholinergic, we are having two major receptors. One is muscarinic receptor, another is the nicotinic receptor. Now, due to the accumulation of additional acetylcholine, this muscarinic activity is getting increased. Now the saliva secretion is increased, that is known as salivation. This is also increased. Then lacrimation, tears are also increasing. Then there is a bradycardia, it will slow down the heart, right? The heart will be slowed down. These all are the muscarinic effect. Adrenergic will lead to the tachycardia. It is balanced by the cholinergic pathway, which will slow down the heart rate. Now if it is in excess, heart rate will be excessively slow. Similarly, in the muscarinic effect, we can see there is a paralysis and the muscle fasciculation. So these are some common symptoms which are occurring actually due to the accumulation of acetylcholine. Why this acetylcholine is getting accumulated? Because the compound which is breaking this extra additional acetylcholine after its work, now it is getting binded by the organophosphate compounds, right? Now this acetylcholine, iska actual pathway kaun tha? Acetylcholine, so that it will have balance in our body. Now in this toxicity case, what is happening? This acetylcholine esterase enzyme is going and binding to the organophosphate compounds. Then these compounds are remaining, right? And they are getting accumulated and showing this activity. So this is the brief mechanism of these organophosphate compounds. Now, here there is another quick mechanism illustrated for the exam point of view, right? This is the same explanation. Organophosphate compounds, it will irreversibly inhibit the acetylcholinesterase enzyme, where it will go into the enzyme and it will phosphorylate the serine moiety in the acetylcholinesterase enzyme. ये acetylcholinesterase enzyme जो है, इसमें एक साइट रहता है, उस साइट में जाके ये फॉस्फोराइलेट कर देता है. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन मींस दिस acetylcholinesterase enzyme will be bound with the OP poisoning. Now this enzyme cannot act on the acetylcholine, so that acetylcholine is getting accumulated in our body system. Now this increased acetylcholine levels will stimulate the muscarinic and nicotinic receptor. Now we will get the various symptoms based on the accumulation of these acetylcholine, right? Now because this acetylcholine is higher, it will activate the muscarinic receptor, that is M1, M2 and M3 receptor, which will have the signs and symptoms like bradycardia, heart rate will be slowed down, salivation, extra salivation means सलाइवा का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, लैक्रिमेशन मीन्स बहुत ज्यादा आंख से आंसू निकलते हैं, यूरिनेशन कोलिनर्जिक एक्टिविटी है तो आदमी को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, जो यूरिनेशन के ऊपर कंट्रोल है वो खो जाता है, डायरिया विल बी देयर, देन ब्रोंकोस्पाज्म ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मियोसिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पुपिल्स. तो ये सारे मस्करनिक इफेक्ट हैं. ऐसे ही क्योंकि ये निकोटिनिक रिसेप्टर को भी एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर देता है, विच विल लीड टू द मसल वीकनेस, पैरालिसिस जैसा सिचुएशन आ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जो अपना काम है वो काम नहीं कर पाते हैं, मसल फैसुलेशंस विल बी देयर, मसल विल स्टार्ट ट्विचिंग एंड समटाइम इट मे लीड टू द हाइपरटेंशन इफेक्ट आल्सो. देन समटाइम
if it is in so excess amount, this acetylcholine will even reach to the central nervous system. तो वहाँ पे the person may have anxiety, confusion, in the excess level person may have a seizure attacks also. Respiratory depression होता है, medulla oblongata में जाके जो अपना respiratory center है उसको भी depress कर देता है. And in the excessive higher dose, even person may experience the condition like coma also. So now this is a mnemonics made easy for your exam point of view. So in the muscarinic receptor we can see the muscarinic activity. These symptoms can be rearranged as a dumbbells. DUMBBELS, dumbbells. D से diarrhea, U से urination, M से meiosis, B से bronchospasm, another B से bradycardia, E से emesis, L से lacrimation and S से salivation. So you remember this mnemonics for your exam point of view. This is very very important. ये long आंसर्स के लिए 10 मार्क्स तक भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स बोल के या फिर पेस्टिसाइड कंपाउंड्स बोल के. तो और ये जो सिम्टम्स है लाइक डम्बेल्स एंड ऑल, जैसे मस्करेनिक सिम्टम्स क्या है, निकोटिनिक सिम्टम्स क्या है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं. जैसे मैकेनिज्म एंड क्लिनिकल फीचर ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है. सो इन लमसम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. होप यू हैव अंडरस्टूड टिल मैकेनिज्म एंड द क्लिनिकल फीचर्स. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डायग्नोज दिस पॉइजनिंग कंडीशन, राइट. इसको डायग्नोज करने का सबसे आसान तरीका है कि आदमी हिस्ट्री लेके आता है कि उसने कुछ तो कंजम्पशन कर दिया है. अगर ये इंटेंशनल है तो अगर वो बताता है कि कोई सामने अगल बगल में कोई एविडेंस है, उन्होंने देखा है. और इफ इट इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर देन अ पर्सन will be telling this. But in case of accidental poisoning और फिर या उसने बताया है बट वी आर नॉट श्योर कि कौन सा पॉइजनिंग है, तो उसको कंफर्म करने के लिए वी कैन गो एंड असेस द एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम लेवल जो कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि ये एंजाइम जो है इट इज ऑलरेडी बाउंड विद द ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स. तो जो फ्री एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है ये 50% से लेस होता है. तो वहां से हमको एक आइडिया मिल जाता है कि इट इज हैविंग द organophosphate poisoning. Similarly, to detect which compounds actually in the organophosphate compound, we can go with the thin layer chromatography, that is TLC technique. These are the sophisticated analytical techniques which are used in the laboratory. Similarly, we can identify or determine the poison substance by mean of high pressure liquid chromatography और high performance liquid chromatography. HPLC technique से भी हम organophosphate compounds को samples में से identify कर सकते हैं. Right. So however the history remains the important point here. Then let's see how to manage this condition. अब हमको समझ में आ गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स कैसे पॉइजनिंग करा रहे हैं, व्हाट इज देयर मैकेनिज्म, व्हाट आर देयर क्लिनिकल फीचर्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज देम. उसके बाद अब हमको वहां पे मैनेज करना जरूरी है. तो अब यहाँ अनवर्ड्स जो हमने पहले प्रिंसिपल्स पढ़े हैं मैनेजमेंट के, वो प्रिंसिपल को मैं अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सो दैट द कोर्सेज विल बी वेरी बोरसम. रादर देन दैट आई विल बी रिफरिंग दी कंटेंट विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. तो मैं आपको उसको एक बार दिखा दूंगा. एनीवे द नोट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन इन कमिंग डेज और इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे हमको क्या देखना है कि फर्स्ट में जैसे आदमी आता है हॉस्पिटल में, वी हैव टू गो विद द डिकॉन्टामिनेशन प्रोसीजर. डिकॉन्टामिनेशन प्रोसीजर कैसे करना है हमने पहले सपोर्टिव मैनेजमेंट वाले सेक्शन में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. सो हम उसको देख सकते हैं कि हम कैसे उसको डिकॉन्टामिनेट कर सकते हैं. एंड डिकॉन्टामिनेशन में जैसे हमने बोला था स्किन को डिकॉन्टामिनेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आई में है तो आई को डिकॉन्टामिनेट करना पड़ेगा, राइट. सो इन सेम वे वी हैव टू डू दैट. फिर जैसे गट डिकंटामिनेशन करना है तो अगर इफ पर्सन इज कमिंग बिफोर 1 hour ऑफ टाइम देन वी कैन गो विद द इमेसिस इफ द पर्सन इज कॉन्शियस. अगर वो थोड़ा लेट आ रहा है फिर भी 1-2 घंटे के अंदर में है, देन वी कैन गो विद द गैस्ट्रिक लवाज. सिमिलरली वी कैन इंड्यूस द कैथारसिस, एक्टिवेटेड चारकोल. तो वो हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं वो वाला वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाके उसको रिफर कर सकते हो. डॉक्यूमेंट डिकॉन्टामिनेशन वाला वीडियो जो अपना है, आई विल जस्ट हैव अ फ्लैश फॉर योर रेफरेंसेस. सो दिस इज अ डिकॉन्टामिनेशन. जैसे आई डिकॉन्टामिनेशन, स्किन डिकॉन्टामिनेशन करना है, फिर गट डिकॉन्टामिनेशन करना है. तो दिस सिस्टम विल रिमेन सेम एवरीवेयर इन द अपकमिंग पॉइजनिंग. तो
उसके बाद हमको आता है कि एंटीडोट कौन सा देना है। सो वी आर हैविंग फ्यू ऑप्शंस हियर इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो पहला एंटीडोट आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन को भी हम इसमें एंटीडोट की तरह ले सकते हैं बिकॉज इट इज हैविंग द एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जा रहा है, तो जो एट्रोपिन है दिस इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है उसको काउंटरएक्ट करने का काम करता है। इन दी this antidote chapter we have discussed कि there are various types of antidote. In that we have seen कि adjunct antidote also and the physical antidote। उसके बाद वहां पे हमने देखा था कि एट्रोपिन भी एक एंटीडोट की तरह काम करता है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है। फिजियोलॉजिकल क्यों एंटीडोट है ये कि इट विल रिवर्स द फिजियोलॉजिकल एक्शन इंड्यूस्ड बाय द पॉइजन सब्सटेंस, राइट। तो ये कंपैरेटिव एंटागोनिस्ट के हिसाब से काम करता है, ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है। मगर क्या है कि ये जो एट्रोपिन है ये मस्करनिक एक्टिविटी को ही रिवर्स करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि निकोटिनिक को नहीं करता है, बट निकोटिनिक बहुत नेग्लिजिबल उसमें रहता है, मेजरली रिवर्स दी मस्करनिक एक्टिविटी। तो इसको कैसे देना चाहिए? दी एट्रोपिन शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ 1 to 2 mg। इन द डोज ऑफ 1 to 2 mg, जैसे आईवी हम इसको IM भी दे सकते हैं। और इसको हमको रिपीट करना पड़ेगा हर 15 मिनट में। कब तक करना पड़ेगा? कि जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए। एंड पॉइंट मतलब क्या होता है कि जो ये सिम्टम है अपने, ये जब तक सिम्टम नलिफाई ना हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं ना कि एसिड बेस को बैलेंस करते हैं कि जहां तक कलर चेंज होता है, वैसे ही जहां पे सिम्टम्स आके रुक जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। तो चिल्ड्रन में इसका डोज ऑलमोस्ट हाफ रहता है, 0.5 से 1 mg तक हम इसको दे सकते हैं। हम इसको कितना दे सकते हैं? इट कैन बी गिवन इन अ लार्ज अमाउंट अप टू 2000 mg, अप टू 2 ग्राम तक हम इसको दे सकते हैं ओवर द डेज एंड वीक। और जब तक सिम्टम्स आते रहते हैं, अगर ये क्रोनिक पॉइजनिंग है या फिर लॉन्ग रिकरिंग सिम्टम्स है, जब तक सिम्टम्स आते रहते हैं उन सिम्टम को हम फिजियोलॉजिकली नलिफाई करते रहेंगे और इसको हम कंटिन्यूअसली इन्फ्यूज करते रहेंगे टिल ओपी गॉट कंप्लीटली मेटाबोलाइज। जब तक ये ओपी पॉइजनिंग कंप्लीटली मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो जाता तब तक हम एट्रोपिनाइजेशन प्रोसेस करते रहेंगे। और जब हम ये एट्रोपिन को विड्रॉ करेंगे तो हमको टेपरिंग मेथड से करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा 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 करके उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे जैसे सिम्टम्स कम कम होते जाएंगे वैसे वैसे एट्रोपिन का डोज भी कम कम करके हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर एक बार में हम एट्रोपिन को सडनली बंद कर देंगे तो जो उसके सिम्टम्स है वो सिम्टम्स फिर से रीअकर हो सकते हैं। नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर। नाउ द अनदर एंटीडोट, वी आर हैविंग द अनदर एंटीडोट दैट इज द प्रालिडॉक्सिन। तो ये प्रालिडॉक्सिन कैसे काम करता है? जैसे हमने पहले मैकेनिज्म में क्या बोला था कि जो ये ड्रग है, ये ड्रग जो ये पॉइजन कंपाउंड है, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड हो जाता है, इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। मगर यहाँ पे जो प्रालिडॉक्सिन है इसको हम 2-PAM भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इट विल गो टू द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो इसने ओपी के साथ कंपाउंड बनाया है उस कंपाउंड में जाएगा। उस कंपाउंड में जाने के बाद ये क्या कर देगा? इट विल रिमूव दी ओपी कंपाउंड फ्रॉम द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये क्या करेगा? ये 2-PAM जो है वो ओपी कंपाउंड के वहां पे जाएगा जिसने एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ कंपाउंड बनाया है। इट विल टेक आउट द ओपी कंपाउंड आउट ऑफ इट एंड मेक अ कंपाउंड विथ इटसेल्फ। ये जो 2-PAM है ना, ये 2-PAM ओपी के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा और जो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है ये खुला हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रीजनरेशन प्रोसेस। दिस एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम विल बी रीजनरेटेड। नाउ दिस एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिट विल रेडिली डिके दी एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन है जो इसको अब ये कंटिन्यूअसली डिके करना चालू कर देगा। तो इसका जो लेवल है, एक्यूमुलेटेड लेवल है, वो रैपिडली डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से मस्करनिक, निकोटिनिक एंड सीएनएस जो सिम्टम्स आए हैं वो सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आदमी स्टेबलाइज हो जाएगा। जनरली वी आर गिविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ PAM along with the atropine also. So it competes with the phosphate and release the acetylcholine esterase enzyme. It liberates the acetylcholine esterase enzyme and breaks the ACH as we have discussed here. Now what should be the dose of PAM? Dose of PAM is 1 to 2 gram in 100 to 150 ml, 0.9 नॉर्मल सलाइन। तो ये नॉर्मल सलाइन में हम क्या करेंगे? 1 से 2 ग्राम तक प्रालिडॉक्सिन को डाल देंगे और उसको इन्फ्यूज कर देंगे, रैपिड इन्फ्यूज कर देंगे 30 मिनट्स के अंदर में। और इसको हम रिपीट कर सकते हैं 1 घंटे के बाद, देन नेक्स्ट डोज 6 आवर के बाद, नेक्स्ट डोज 12 आवर के बाद। ऐसे हम
रिपीट कर सकते हैं। सम टाइम वी कैन गिव इट इन अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन मैनर कि 500 mg पर आवर के हिसाब से इसको हम कंटिन्यूअसली देते रहेंगे जब तक चीजें रिवर्स नहीं हो जाएंगी। तो इसको हम एक दिन में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम अप टू 12 ग्राम। दिस लिमिट वी हैव टू रिमेंबर, इससे ज्यादा नहीं देना है। मैक्सिमम वी कैन गिव अप टू 12 ग्राम इन अ डे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसका सीएनएस है, सीएनएस में हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि इसको सीजर भी हो जाता है, उसका कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत रहता है ओपी पॉइजनिंग में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर डायजेपाम भी ऐड कर सकते हैं, राइट। देन another important point in the management of these organophosphate compound is the prevention of further exposure। जो एक्सपोजर हो सकता है आगे का, उस एक्सपोजर को हमको बचाना चाहिए। देन जो प्रालिडॉक्सिम है ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है, जबकि एट्रोपिन प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते, जिससे फिटल को अनवांटेड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम ग्लाइकोपायरोलेट को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको सपोर्टिव मैनेजमेंट करना होता है। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट हम उसको क्या क्या कर सकते हैं वो हमने पहले ही आपको डिस्कस करके बताया। जो स्टेबिलाईजेशन और इवेल्युएशन सेक्शन में हमने बताया था कि कैसे करना है स्टेबिलाईजेशन। तो यहाँ पे इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी सेक्शन 3A, जो अपना स्टेबिलाईजेशन किया था हमने सेक्शन 3A से हमको चालू करके 7A तक जो भी हमने कंप्लीट पढ़ा था, मैं यहाँ पे जस्ट आपके रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एसेस किया था एयरवे ब्रीदिंग को, फिर इसको कैसे मैनेज करना है, देन सर्कुलेशन अगर कोलैप्स हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, देन फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, टेम्परेचर घट जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। ऑल दोज लॉट्स ऑफ थिंग्स, दीज ऑल कम अंडर दी सपोर्टिव मैनेजमेंट। ये जो हमने इवेल्युएशन में पढ़ा था यही सारे सपोर्टिव मैनेजमेंट में आते हैं। अगर एनायोनिक गैप हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, सिस्टमिक एसिडिटी या सिस्टमिक अल्कालोसिस, उसको कैसे मैनेज करना है, कन्वल्जन या सीजर आते हैं, एजिटेशन, मूवमेंट डिसऑर्डर या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पे आती है? सपोर्टिव मैनेजमेंट में आती है। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, मैं उसको यहाँ डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक्स नहीं यूजफुल होती है। क्यों नहीं यूजफुल होती है? कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक से हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स को नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिटाइल कोलिन स्टोरेज के साथ एक कंपाउंड बना के बैठा है। जो ये कंपाउंड है ये लार्ज कंपाउंड है और ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक से हम नहीं निकाल सकते। इसको निकालेंगे अगर हम तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन स्टोरेज एंजाइम भी बाहर निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रिलीफ है वो रिलीफ नहीं मिलेगा। देन नर्सिंग एंड साइकेट्रिक केयर हमको देना है। नर्सिंग एंड साइकेट्रिक केयर भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि नर्सिंग एंड साइकेट्रिक केयर कैसे देना है, वो भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है एंटीडोट वाले टॉपिक के लास्ट सेक्शन में, आप वहां पे जाके इसको रिफर कर सकते हो। और नोट जो मैंने पहले स्टेबिलाईजेशन और इवेल्युएशन का डाला है वहां से एग्जाम के लिए नोट बना के पढ़ सकते हो। तो ऐसे हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एट्रोपिन और प्रालिडॉक्सिम है इसको हम एज ए एंटीडोट यूज करेंगे किसके? ओपी के कंपाउंड में। ये हमको याद करके रखना है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जितने भी हमारे पास पॉइजनस सब्सटेंसेज है उसमें से 5 से 10% सब्सटेंस के ही हमारे पास एंटीडोट्स अवेलेबल है। तो ये एक कंपाउंड है, ओपी कंपाउंड एक कंपाउंड है जिसका हमको एक डेफिनेट एंटीडोट अवेलेबल है, तो हमको इसको याद करना चाहिए। कभी कभी ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या कभी कभी इट कैन कम इन टू योर इंटरव्यूज ऑल्सो। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। होप you have understood the topic, right? And I want to give a disclaimer, अगर कहीं पे कुछ बोलने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है और आपको कुछ डाउट आता है तो you please raise your concern in the comments, so we will address that and we will rectify that. So having said that, please like the content, share it with your friend and subscribe the channel. Thank you for attending the session.